Chief Technology Officer, Software Technology. So your work in technology-driven solution is shaping in future of digital transformation. मैं चाहती हूँ आप स्टेज पर आएं for your technological session. एक बार जोरदार तालियों के बीच please put your hands together for Mr. Imran Khan. A very good afternoon. It's about to good afternoon to honorable dignitaries, respected guest, host, executive member of this event. I am Imran Khan, founder and CTO from Software Technology, one of hospital management software company. I thank to organizing committee of this event, especially to Dr. Mohammad Kashif, who has invited me. Because of he I am here, and it is a matter of pleasure for me that I am here to present a topic that is artificial intelligence in healthcare system. Is it working? Working? Hello. So hope there is no time limit, ma'am, or there is a limit. Okay, fine. So why this topic is given to me? Because I am from the sector where artificial intelligence is working towards in the healthcare system. Before proceeding in depth, what is the application of AI? I would like to focus you the basic what is AI. AI is nothing new. It was invented in 1956 by John McCarthy. It is a development and the use of computer program and algorithms, machines that takes input, process of the evidence-based data and gives you output result as a human being works. So it is an intelligence which is not human, it is an artificial. But nowadays everywhere you can feel that you are surrounded by the AI. Whenever you are locating a Google map, it shows you a route. Whenever you ask in the weather forecasting that what will be the temperature of Delhi in 1st of January, so you will find your AI tools start working. So there is a vast discussion over why we are using AI, whether this AI may replace the human manpower. If I am from the company that having around 20 to 30 employees, so in time to come what would happen, whether this AI will detect the employment of my office. So AI is something, you can compare this technology with the era of computer in our country. तो जब 20 से 25 साल पहले कंप्यूटर कंट्री में आए थे तो कुछ लोगों का सोचना था कि शायद ये कोई जॉब या लोगों की मैन पावर को कम करेगा। लेकिन आज जहां खड़े हैं, जहां बात कर रहे हैं, वहां अगर हम कंपेयर करें उस वक्त के क्वेश्चन को, लोगों के बीच को, तो पता ये लगेगा कि बिना कंप्यूटर के जीवन संभव ही नहीं है। वैसे ही एआई के अपने एडवांटेज हैं, अपने मेरिट्स हैं। तो दो बड़े एडवांटेज मैं आपको बता देता हूं। द फर्स्ट इज द कैपेसिटी ऑफ वर्क। आई एम फ्रॉम दी कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड, सो आई मे नॉट हैव ए नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री। मुझे वो केमिस्ट्री में डेप्थ के क्वेश्चन नहीं दे पाऊंगा। बट एआई ऐसा नहीं है, इट इज ए मशीन। सो आप मशीन मल्टी डायमेंशनल वर्क करती है, आप उसमें बायोलॉजी के क्वेश्चन के आंसर भी फिल कर दीजिए, आप केमिस्ट्री भी करिए, कंप्यूटर साइंस भी करिए, वो आपको 360 एनवायरनमेंट में आपको रेस्पॉन्स करेगा। सेम एज एक होता है लिमिट ऑफ नॉलेज, ये भी कि मैं एक वर्क करने के साथ साथ मैं उस नॉलेज को कितने स्केल तक यूज कर पा रहा हूँ। आई एम लिमिट कि मैं दिन में से 6 घंटे काम कर सकता हूँ। बट मशीन्स का ऐसा कुछ नहीं है, मशीन्स को आप चाहें जितने टाइम तक आप उसे यूज कर सकते हैं। अब हेल्थ केयर एप्लीकेशन में एआई कैसे काम कर रहा है और आप लोगों को क्या ध्यान देना है कि एआई हेल्थ केयर सिस्टम में जो है वो आपके लिए है या नहीं। सबसे पहला पॉइंट यह है कि हेल्थ केयर सिस्टम में जो भी एआई टूल बनने जा रहे हैं या जो बन रहे हैं वो डायरेक्ट आम इंसान के लिए नहीं है। अगर एक पेशेंट को सर में दर्द है और उसको वॉमिटिंग फील हो रहा है तो ऐसा नहीं है कि उसने मोबाइल में कोई एआई टूल खोला और उसने सर्च किया, अपनी पर्सनल हिस्ट्री वाइटल्स फीड किए, वहां से 2 ड्रग आए और मेडिकल स्टोर से परचेज किया और
रिकमेंडेशन आई कि दिन में 6 बार लेना है और आपने वैसे ही लिया, इन प्लेस ऑफ द एडवांटेज वो आपको नुकसान पहुंचाएगा। तो देयर इज समथिंग इन बिटवीन दिस टेक्नोलॉजी दैट इज अ ह्यूमन बीइंग अगेन, एंड दैट ह्यूमन इज नथिंग, इट इज अ डॉक्टर। एआई कितना भी एडवांस हो जाए, हेल्थ केयर सिस्टम में डॉक्टर्स को एलिमिनेट नहीं किया जा सकता। मेडिकल प्रैक्टिशनर का जो वर्क है, जो नर्सिंग स्टाफ का वर्क है, वो एआई को असिस्ट करता है, एआई को रिमूव नहीं करता। ऐसा करने के लिए कि कोई आपको कोई रूट, गूगल मैप के अलावा कोई भी और एप्लीकेशन आप गूगल से डाउनलोड करिएगा, आपको मैप एप्लीकेशन नोएडा तक ले जाएगी। बट समटाइम्स कुछ एप्लीकेशन अनऑथेंटिक है, वो आपको नोएडा की जगह आपको गुड़गांव ले जाए, गुरुग्राम ले जाए, तो आपका लॉस नहीं होगा टाइम के अलावा। बट ह्यूमन बॉडी इज नॉट नेचर, उसका ये है ही नहीं कि वो गलती को बख्शे। आपने गलत दवाई खाई, आपको वापस रिकवर करने में शायद एक डबल ट्रिपल टाइम आपको इन्वेस्ट करना पड़े और टाइम अपनी बॉडी को देना पड़े। तो ह्यूमन बॉडी, मेडिकल साइंस, देयर आर द फ्लिप ऑफ कॉइन, एक कॉइन के दो साइड हैं। ऐसा नहीं है कि आप इसमें एआई पर बिल्कुल ब्लाइंड आंखों से बिलीव कर सकते हैं। तो इस कंट्री में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हेल्थ केयर सिस्टम में मॉनिटरिंग और गवर्नेंस की रिक्वायरमेंट है। वो मॉनिटरिंग और गवर्नेंस के लिए देयर आर टू इंपॉर्टेंट बॉडी इन आवर कंट्री। द फर्स्ट इज द नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हु इज मॉनिटरिंग ऑल डॉक्टर्स और गाइडलाइंस और हॉस्पिटल्स। सेकंड इज एम्स न्यू दिल्ली। एम्स न्यू दिल्ली, व्हेन यू go background, you will find it's an institute, it's a college. It is same as our Dr. Kashish was running. It is an institute, it's not an hospital. Now we basically feel कि उधर जाना इलाज कराना, but it's an education hub. तो एम्स न्यू दिल्ली और NHA ने साथ मिलके एक AI टूल को अपने कंट्रोल में लिया है जो हेल्थ केयर सॉफ्टवेयर में काम करेगा। ऐसे नहीं कि आपने कोई भी नेट से सर्च किया और आपने उसे अपने प्रोडक्ट में लगाया और आपने पेशेंट्स को सेव करना शुरू कर दिया। आपका जो प्रोसेस है वो ये है कि आपको जो टूल यूज करना है वो एम्स और NHA से अप्रूव होना चाहिए, और वो टूल मार्केट में लॉन्च हो चुका है। हम जैसी सॉफ्टवेयर कंपनीज उस टूल को अपने सॉफ्टवेयर में इंटीग्रेशन कर चुकी हैं और आगे उसको और एनहेंस करने के लिए काम कर रही हैं। उस टूल का नाम है CDSS। आप अगर अपने मोबाइल में इस कॉन्फ्रेंस के बाद, क्योंकि मैम परमिट नहीं कर रहे मोबाइल यूज करने के लिए, बाद में अगर आप उसे एक्सप्लोर करेंगे, so CDSS stand for the Clinical Decision Support System। जो भी एप्लीकेशन है, आप IT की कोई भी एप्लीकेशन डिजाइन करते हैं, if you want to assist doctors, medical practitioners with the help of AI, तो आपको CDSS टूल को ही इंटीग्रेट करना है। कोई दूसरा टूल इस इंडस्ट्री में अभी अप्रूव नहीं हो पाया। Why I am telling you? Because I am from the company that is Softcure Technology, one of the hospital management software company that is approved by National Health Authority as well as by NABH Quality Council of India। हम लोगों ने CDSS को इम्प्लीमेंट किया है, और सर डॉक्टर काशिफ सर मेरे को काफ़ी टाइम से जानते हैं। तो मैं 2000 जब कोविड पैंडेमिक आया, जब हम लोग स्ट्रगल कर रहे थे कि हम लोग अपनी एप्लीकेशन मार्केट में कैसे सेल करें, क्योंकि हॉस्पिटल सॉफ्टवेयर को सिर्फ बिलिंग से जोड़ा जाता था कि भाई आप OPD की ये छोटी पर्ची लीजिए, वेट करिए, टोकन स्क्रीन आपको दिखाई देगी, आपका नंबर कब आएगा, डॉक्टर के रूम में जाएंगे और पर्चा लेके फार्मेसी से दवाई लेके एग्जिट करेंगे। इतना ही रोल सॉफ्टवेयर कंपनी का हॉस्पिटल्स में एप्लीकेशन में होता था। कोविड के बाद लोगों ने हेल्थ को एक सब्जेक्ट की तरह लिया है, और एक ऐसा सब्जेक्ट जो उनके माइंड के सबसे ऊपर वाले लेयर पे काम कर रहा है। आज अगर आप कोई बराबर में आपको कोई लगेगा कि कोई खांस रहा है बिकॉज ऑफ एनी रीजन, यू विल फील कि मुझे इससे सिक्योर होना है। हमारी माइंड की साइकोलॉजी पे इतना इम्पैक्ट हुआ है इस कोविड का कि आज हमारी टॉप प्रायोरिटी में हेल्थ है। हम कार का इंश्योरेंस तो करते हैं, हेल्थ का इंश्योरेंस नहीं करते। अभी भी मोस्ट प्रोबेबली आपका शायद सबका हो, लेकिन जिनका नहीं है वो आप हेल्थ को आप सेकेंडरी नहीं रख सकते, बिकॉज जो भी आपकी अम्ब्रेला में है, जिनके आप गार्जियन हैं, वो बिकॉज ऑफ यू। अगर वो ह्यूमन बॉडी ठीक नहीं है तो आप किसको सुपरविजन करेंगे? तो इसलिए कोविड के बाद हेल्थ केयर एप्लीकेशन में EMR को इंक्लूड किया, जिसमें पेशेंट के ट्रीटमेंट को फीड किया जाए और वाइटल्स, BP, टेम्परेचर, आपकी पर्सनल हिस्ट्री, फिर वो उधर से रिकमेंडेशन आएंगी ड्रग्स की, उधर से प्रोविजनल डायग्नोसिस का रिकमेंडेशन आएगा, उसके बिहाफ पे डॉक्टर असिस्ट होगा
डॉक्टर को एआई रिप्लेस नहीं कर रहा है। एआई से जो रिकमेंडेशन आती है वो ऐसा नहीं है कि वही प्रिंट आएगा। हम लोग एज एन एप्लीकेशन वो रिकमेंडेशन को कंप्यूटर स्क्रीन पर डिस्प्ले कर रहे हैं और कंप्यूटर स्क्रीन पे ऑप्शन है डॉक्टर को वेदर द रिकमेंडेशन गिवन बाय एम्स ही और शी में रिजेक्ट दैट रिकमेंडेशन। अगर उसको लगता है नहीं ये रिकमेंडेशन ठीक नहीं है तो डॉक्टर रिकमेंडेशन को डिस्कार्ड करेगा, अपने ड्रग रिकमेंडेशन लिख देगा। तो हेल्थ केयर सिस्टम में एआई इस तरह काम कर रहा है। कंक्लूजन मैं आपको ये दे देता हूं कि ये तो सिर्फ एक हेल्थ केयर एप्लीकेशंस में इसमें हेल्थ केयर काम कर रहा है। अभी आप नेक्स्ट 5-6 ईयर्स में आप देखेंगे कि आपके डेली लाइफ में एआई एक प्रोग्रेसिव स्पीड से जा रहा है। आप उसकी मैप को भी प्रोग्रेस को मॉनिटर नहीं कर रहे, लेकिन मॉनिटर जब करेंगे जब एआई जो है पेड हो जाएगी। आप अभी जीमेल पे आप देखिए कितने फोटो क्लिक कर रहे हैं। विद इन मिनट आई एम क्लिकिंग 100 फोटोग्राफ, ऑल इज सिंकिंग टू माय जीमेल। जीमेल इज फ्री, वन डे विल कम अप जब आपका जीमेल फुल हो जाएगा, जब ईमेल आपसे लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल एबीसी अमाउंट चार्ज कर रहे हैं, तब हम कॉन्शियस होते हैं कि इसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा। हम कुछ दिन इग्नोर करते हैं, बाद में हमें परचेज करना ही होता है। तो आज अगर एआई पे आप डिपेंडेंसी लाने के लिए, बेटर एआई को यूज करने के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अच्छे से यूज करने के लिए हमें अपनी ह्यूमन इंटेलिजेंस को डेवलप करना पड़ेगा। हमारे अंदर असेसमेंट पावर क्रिएट करनी पड़ेगी जिससे हम ये डिफरेंशिएट कर सकें जो इंफॉर्मेशन मुझे प्रेजेंट की जा रही है, जो मेरे टेबल पर परोसी जा रही है, वो जेन्युइन है या फेक। कोई भी, इट इज नॉट इन द हेल्थ केयर एप्लीकेशन, आप कुछ भी आपको इंफॉर्मेशन दी जा रही है, आपको अपने माइंड में इतना आईक्यू डेवलप करना पड़ेगा अपनी जनरेशन में, अपने आने वाली जनरेशन में, कि वो एसेस कर सके जो इंफॉर्मेशन वो सर्च कर रहा है और जो एआई आपको प्रेजेंट कर रहा है वो जेन्युइन है या फेक। जब आप उस लेवल का अपने इंटेलिजेंस को डेवलप कर पाएंगे, अपना ह्यूमन इंटेलिजेंस डेवलप कर पाएंगे, तभी आप अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ऑप्टिमल वर्क ऑफ स्टेज पे जा पाएंगे। देयर इज वन मोर पॉइंट टू डॉक्टर मोहम्मद काशिफ, यहाँ है क्या? ओके, एनीवन फ्रॉम हिज अकेडमी? कोई उनके इंस्टीट्यूट से इधर है? ओके, नो प्रॉब्लम, यू कैन, ओके प्लीज मैम, सो यू कैन कन्वे माय मैसेज। देखिए, बिकॉज ही इज रनिंग बहुत नोबल वर्क वो कर रहा है। सी आई एम डीलिंग डे टू डे लाइफ, मैं हॉस्पिटल्स और इसमें ही वर्क करता हूँ। बहुत कम लोग हैं जो कॉन्शियस होते हैं, मतलब आई एम नॉट सेइंग टू ऑल ऑफ की सब नहीं है, बट बहुत कम रेशियो होता है कि जो लोग एक नोबल कॉज की वजह से एक एक्टिविटी को करते हैं। तो चूंकि मैं इनको फॉलो करता रहता हूँ काशिफ सर को, तो देखता हूँ कि ये कुछ ऐसी एक्टिविटी करते हैं और स्पेशली रूरल एरिया के लोगों को ये अट्रैक्ट मैग्नेटिक कुछ एनर्जी के थ्रू लाना चाहता है। तो मैं इस मन से, स्टेज से ये कहता हूँ कि अगर आपके यहाँ कोई कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं और उन्होंने सिर्फ आपके यहाँ से कुछ भी एक कोर्स किया है, वेदर सर्टिफिकेट डिप्लोमा कोर्स, सो ऑन बिहाफ ऑफ माई कंपनी आई वेलकम यू द स्टूडेंट्स। अगर वो हमारे यहाँ पर आके ट्रेनिंग करना चाहें और आफ्टर ट्रेनिंग वो हमारे यहाँ से अपना करियर स्टार्ट करना चाहें, तो आई वेलकम ऑल ऑफ दैट, वो यहाँ आ सकते। थैंक यू। तालियां थोड़ी कम बजी, कम ऑन एवरीवन, एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए इमरान जी के लिए। बहुत ही सम्मानित कदम उनके द्वारा लिया गया है। और मोहम्मद काशिफ जी शायद यहाँ मौजूद नहीं है, तो उनकी टीम से मैं वंदना को चाहूंगी वो स्टेज पे आए, और हासिम अली जी जो उनके बड़े भाई हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी मंच पर आके सम्मानित करेंगे इमरान खान जी को। एक बार जोरदार तालियां चाहिए। उन्होंने डेटा इंटेलिजेंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से यहाँ पे हर कोई अवगत है कि किस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने वर्ल्ड की डायनेमिक्स को चेंज किया है। नाउ एवरीथिंग यू यूज हैव टर्न्ड इनटू डिजिटल लाइफ। हर कोई फोन यूज कर रहा है और आजकल एआई का जमाना है, तो चैट जीपीटी का भी इस्तेमाल काफी लोग यहाँ पे कर रहे होंगे। चैट जीपीटी, गूगल जेमिनी को यहाँ यूज करता है? सर करते हैं। So it's good time to shift on artificial intelligence, because artificial intelligence is going to replace the human who is not using the artificial intelligence. So I think it's a good time to switch to artificial intelligence for your future needs. Thank you so much Imran ji for such an informative technical session. बड़े में आगे हमारे साथ रिजवान अहमद जी यहाँ मौजूद हैं from Meerut. He is the manager from मौलाना आज़ाद इंटर कॉलेज। मैं चाहती हूँ कि सर आप आएँ और एक स्पीच के माध्यम से आप हम सभी